God. Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। कितने यहाँ पे यीशु के प्रेमी हैं, जरा अपनी आवाज सुनाओ। How many lovers of Jesus are here? Let me hear your voice. Amen. अब मजा नहीं आया, थोड़ा और I अच्छे didn't से। enjoy this. Amen. Hallelujah. Wow. Jesus is alive. यीशु जिंदा है। Amen. And His victory is और our victory. और उसकी जय हमारी जय है। Amen. मैं As God, it would be insult for God to fight a created angel. परमेश्वर होते हुए उसकी तौहीन है कि वो एक बनाए हुए स्वर्गदूत से लड़ाई लड़ता। Okay, people think that it's a fight between God and Satan. लोगों को लगता है कि परमेश्वर और शैतान के बीच लड़ाई है। He's just a created angel. वो एक- Devil is just a created angel. वो एक बनाया हुआ स्वर्गदूत है, शैतान एक सृष्टि किया हुआ दूत है। He's not omnipresent. He's not omniscient. वो सर्वव्यापी नहीं है, सर्वज्ञानी नहीं है And he is not all powerful. और सर्वसामर्थी नहीं है। He's a created angel. वो एक बनाया गया स्वर्गदूत है। Okay? So God didn't defeat him as God. तो परमेश्वर ने उसको परमेश्वर होते हुए नहीं हराया। Okay, but before I go into the word, Vachan- let me just put some breaks. Okay? I want to tell you that I have written my second book. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपनी दूसरी किताब लिखी है। This book is called You Have Authority. इस किताब का नाम है कि तुम्हारे पास अधिकार है। Amen. This is just a demo copy, so ये एक डेमो we will कॉपी है। release it on Easter. ईस्टर पे इसको रिलीज करेंगे हम। Okay, but here I have written principles from the Word of God that will make you walk as a victorious champion. पर इसमें मैंने वो सिद्धांत लिखे हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा जो आपको एक जयवंत योद्धा की तरह चलने में बल देंगे। Amen. So we are going to see devil as God sees devil. तो हम शैतान को उस नजरों से देखेंगे जिससे परमेश्वर उसको देखता है। Defeated. हराया हुआ। So I'll just give you a sneak peek from the book, teach you a little bit. मैं आपको थोड़ी सी झलक देना चाहता हूँ, किताब में से सिखाना चाहता हूँ। But full teaching will be in the book. Amen. Come on, we'll just pray. Heavenly Father, we worship you. स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, We adore you. We glorify you. हम आपको सराहते हैं, आपकी महिमा करते हैं। पिता, आप एक बहुत अच्छे पिता हैं। Lord, you are a very good father. आप ज्योतियों के पिता हैं। You are the father of lights. आपने अनंत के पहले से प्रभु और अंत तक आपने केवल हमारे लिए भला सोचा है। From eternity till the end, you have only thought good for us. आपका वचन कहता है कि मेरे विचार तुम्हारे लिए उस रेत के कणों से भी ज्यादा हैं Your जो word, समुद्र के पास है। your word says, my thoughts for you are more than the grains of sand on the beach. प्रभु, हम आपको क्या चढ़ा सकते हैं और आपको क्या दे सकते हैं? Or what can we offer to you? What can we give to you? आपने अपने आप को हमारे लिए चढ़ा दिया। You have offered yourself for us. प्रभु, हम केवल आपकी स्तुति और महिमा कर सकते हैं। Lord, we can just praise you and glorify you. केवल ये कह सकते हैं कि खुदावन अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है। We can just say only by faith, only by grace we have been saved. केवल आपकी दया और करुणा की वजह से। Only by your grace and your mercy. पवित्र आत्मा, Holy Spirit, हमारी मदद करें help us कि हम आखिरी सांस तक that till our last breath हम उस प्रेम से जो यीशु के लिए है जलते रहें। that we would burn with that love for Jesus. कि आखिरी सांस तक That till our last हम breath विश्वास योग्यता के साथ अपनी दौड़ को दौड़ें। we will run our race faithfully.
और जब अपनी आखिरी सांस लें प्रभु, And when we take our last breath, तो तुझे धन्यवाद करें। we would be thanking you. और जब अपनी आंखें हम यहाँ बंद करेंगे, And when we will close our eyes here on the earth, तेरे सामने अनंत के लिए अपनी आंखों को खोलेंगे। we will open our eyes before you for eternity. प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूँ, Lord Jesus, you said, I go and prepare a place for you, कि जहाँ मैं रहता हूँ तुम भी मेरे साथ रह सको। that where I live, you can also live with me. आप धन्य हो प्रभु, You are blessed, Lord. आप भले हो, आप बहुत अच्छे हो। You are good, you are so We good. give you praise, हम आपकी स्तुति we करते हैं, give you glory, आपको महिमा we देते give you honor हैं, आपका आदर करते in हैं, Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Hallelujah. Amen. You can be seated. आप बैठ सकते हैं। Tell them to bring the tea. Hallelujah. कैसे हैं आप सब? हाँ? Okay. Hallelujah. So, बुक में बहुत कुछ है, बट मैं थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दूंगा। There's so much in the book, I'll give you a glimpse of it. ओके, कि आप उस जय में जो प्रभु ने हम सब के लिए जो जय उसने करी, So the victory that Jesus has won for us. he not only defeated devil for us, he defeated devil as us. उसने केवल शैतान को हमारे लिए नहीं हराया, लेकिन हम हमारे साथ मिल करके, हमारी जगह हो करके उसको हराया। ओके, आज जब मैं कितने सारे मसीहों की बातें सुनता हूँ ना, मुझे बहुत दुख होता है। Today when I hear many believers talk, I feel very sad for them. बिकॉज गलत शिक्षाओं ने ना उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। Because wrong teachings have corrupted their minds. अभी आपको हमने बैंड पहनाया है, We've given you a band when you entered. ये इसलिए था कि कई बारी क्या होता है कि लोग बाहर वॉशरूम जाते हैं This is because many times people go to the और आप देख washroom, रहे हो इतनी भीड़ बाहर होती थी, तो वो कोई और उनकी जगह में बैठ जाता था and you see many people that were outside, they would come and sit in their place. और फिर बहुत कुछ होता था बाहर, आपको पता है जो And a बाहर lot of ruckus would happen. सो हमने सोचा कैसे हम एक तरीका निकालें कि आपको अच्छे से हम लोग सर्व कर सकें, कि अगर कोई बाहर जा रहा है हमें पता हो कि वो पहले अंदर बैठा था। So we thought how to find a good way to navigate through someone going out, we would know was already sitting inside. क्योंकि कई लोग 12 बजे आते हैं Some people come at 12, और कई लोग 8 बजे आ जाते हैं। but some come at 8 in the morning. ओके, और वो लड़ते हैं फिर अंदर आने के लिए। And those at 12, they तो come and हमने fight. ये बैंड निकाला, So we brought a band. तो एक बंदा बाहर लड़ने लग गया, ये 666 का बैंड पहना रहे हो आप। So one man started to fight outside. You're giving me a band of 666. Wrong teachings have robbed Christians of their inheritance in Christ Jesus. गलत शिक्षाओं ने मसीहों से उनकी विरासत चोरी कर ली है। They live as victims and cowards. वो बेचारे बनकर, डरपोक बनकर जीते हैं। Okay? Seeing demons everywhere. हर जगह उनको दुष्टात्माएं नजर आती हैं सिर्फ। It's time to take the demonic lens out. समय है कि वो दुष्ट आत्मा वाला जो चश्मा है वो उतार दें। It's time to put the lens of Christ ये समय है मसीह का चश्मा पहनने का, and see everything through the finished work of Lord Jesus Christ of और Nazareth. सब कुछ को मसीह के उस काम जो खत्म हो चुका है उसके द्वारा देखना शुरू करने का। Amen. आमेन। अगर गॉस्पेल नहीं समझा If you did not understand the gospel, तो उस जय में भी नहीं चल पाओगे। then you will not be able to walk in that victory either. Because the Bible tells us in Romans 1:16 that gospel is the power of God for salvation. बाइबल हमें रोमी 1:16 में कहती है कि सुसमाचार ही परमेश्वर की सामर्थ्य है जो उद्धार के निमित्त है। Amen. सुसमाचार ये नहीं है भैया कि हम यीशु को मानते अब स्वर्ग जाएंगे। The gospel is not that we believe in Jesus now we'll go to वो heaven. है, That वो भी is a है, part of it. That's a starting point. वो उसका शुरुआत है। Jesus didn't just die to change your location, he died to change your spiritual position. यीशु ने केवल आपकी
अंत की जगह बदलने के लिए नहीं, लेकिन आपकी हमेशा का जो स्थान था उसको बदलने के लिए किया जो किया है। Okay? Jesus didn't just die to take you somewhere. Jesus died to put the God kind of life in you. यीशु इसलिए नहीं मरे कि आपको किसी जगह पर ले जाएं, लेकिन इसलिए कि जो परमेश्वर का जीवन है उसको आपके अंदर डाल दें। अरे सुसमाचार केवल एड्रेस बदलने के बारे में नहीं है। सुसमाचार आपको एक नई क्रिएशन, एक नई प्रजाति जो कभी पृथ्वी पर नहीं थी वो बनाने के बारे में है। The gospel is not about changing your address, it's about making you a new creation, a species that never existed before. Amen? आप जानते हैं जब बाइबल में लिखा है यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, वो शब्द नया व्यक्ति नहीं है। कई लोग सोचते हैं मैं मसीह में आ गया, मैं सिगरेट पीता था, अब सिगरेट नहीं पीता। अच्छी बात है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, आपका शरीर नाश हो जाएगा। मगर मसीह gospel is not about behavior modification. If someone used to smoke a cigarette earlier and now they don't, that's a good thing, you should not. But सुसमाचार अपने व्यवहार को बदलने के बारे में नहीं है, वो एक नई सृष्टि के बारे में है। Gospel isn't about more willpower that I will not do something wrong. सुसमाचार इस बारे में नहीं है कि मैं ज्यादा इच्छा शक्ति रखता हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। अरे यही तो हर जगह सिखाया जा रहा है। This is what everybody else is teaching also. झूठ मत बोलो, Don't lie, पाप मत करो, don't sin, अच्छे काम करो। do good things. मगर सुसमाचार But the gospel is a mystery. एक रहस्य है। और अगर उस मिस्ट्री को नहीं समझे And if you did not understand that mystery, तो फिर ऐसी जियोगे जैसे बाकी सारी चीजें। then you will live just the way all the others do. इसीलिए बहुत जरूरी है आपका सारा ध्यान। आज एक चीज डिसाइड करो, मुझे प्रभु ये समझ दे कि मैं सुसमाचार के भेद को समझ सकूं। So decide this today and say, Lord, give me the understanding to understand the mystery of your gospel. क्योंकि आज कितने मसीह ऐसे हैं जो नहीं जानते कि सुसमाचार क्या है। Because many believers today do not know what the gospel is. They are so gullible. वो इतनी आसानी से कुछ भी मान लेते हैं। जो किसी ने बोला वो निगल लिया, जो YouTube में देखा वो निगल लिया। Whatever someone said, whatever they watched on YouTube, they took it. So बहुत ज़रूरी है। Maybe we'll do a series and on the gospel. But gospel isn't bad news, it is good news. सुसमाचार बुरी खबर नहीं है, वो अच्छी खबर है। आपका जन्म अच्छी खबर से हुआ है। Your birth came out of a good news. ओके, सो मैं आज ठीक है आराम से, मैं बहुत आराम से आज सिखाना चाहता हूँ। आराम, थोड़ा टीचिंग मोड में जाएंगे, आराम से सिखाऊंगा। कहीं जाना तो नहीं है? पिक्चर हॉल का टिकट तो नहीं बुक किया? ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पे हो? Are you here? अब तो कोई टेंशन नहीं है। No tension. संडे को थोड़ी देर फास्टिंग भी हो जाएगी तो You चलेगा। can fast for some time also. That's okay. अब तो बाहर के लोग भी बता रहे कि फास्टिंग अच्छी होती है आपके शरीर के लिए। Now people are saying fasting is good for your body. आज मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ जो 2 बजे बाहर बैठ जाते हैं लॉन में। Today I want to talk to those people who go outside and sit in the अरे lawn at इतनी 2. क्या भूख है भाई? What is that? What kind of a hunger is that? एक मील की भूख नहीं रोक सकते क्या? You can't stop your hunger for one meal. वो बाहर बैठ जाएंगे। They'll go and sit out. अरे खाना मिलेगा 4 बजे, 2 The food comes at 4. They will sit at 2. अरे घर में चल, घर रह लो भाई अगर खाना खाना You है। could have stayed home if you wanted to eat food. अरे इस घर के जो लोग हैं ना, जो बोए गए हैं, वो वचन के लिए यहाँ पे आते हैं। The people that are planted in this house, they come here for the word. और जो वचन के भूखे हो गए ना,
And those who get hungry for His word, कोई तूफान उन्हें हिला नहीं सकता. no storm would be able to shake them. कोई गोलायत उनको हरा नहीं सकता. No Goliath can defeat them. Amen. So आज मैं कुछ बातें करूंगा थोड़ा सा बुक से, So I will share some things from the book. तो स्ट्रेट बात होगी. It will be straightforward. अगर बुरा लगे तो अंत में प्रार्थना भी होगी. If someone feels bad, we'll also pray at the end for you. ओके. मगर आप जानते हैं अगर एक पुराना घर है ना, But you एक know, पुराना दादाजी का घर था, if there's an old house like an ancestral house, टूट रहा है, it's breaking उसमें कोई apart. रह नहीं सकता, चू रहा है, दीवार में दीमक लग गई है. Nobody can live in that house. There are termites all over. अगर एक नया घर बनाना है ना, If you have to make a new house, तो पहले जो पुराना खराब है उन नींवों को तोड़ना जरूरी है. then first the old that is rotten has to be destroyed. The foundation has to be replaced. मिट्टी के घर के ऊपर सीमेंट की भैया फ्लोर नहीं बना सकते आप. You cannot make a concrete floor on top of a dirt-made house. ओके. नया सीखना है ना, If you want to learn new, many people want to learn but there is no true learning until you unlearn the things that are wrong. बहुत से लोग सीखना तो चाहते हैं पर कुछ नहीं सीख सकते जब तक जो पुराना जो गलत था जो सीखा था उसको नहीं हटाएंगे, उससे पीछा नहीं छुड़ाएंगे. ओके. सो अगर जय में चलना है, If you want to walk in victory, आपको उस जगह में आना पड़ेगा you have to come to that place. और अपने मन में ये निर्णय करना पड़ेगा कि जो कुछ शिक्षाएं मैं सुनता हूँ, YouTube में देखता हूँ, लोगों को कहते हुए सुनता हूँ, चाहे कितना भी पॉपुलर बंदा बोल रहा है, अगर वो वचन के अनुसार नहीं है उसको ग्रहण नहीं करना. You have to come to a place where you will say, if I hear a teaching on YouTube, I hear a believer speaking about something, no matter who the person is, how popular, if they do not speak something aligned to the word, I will not receive it. मैं हमेशा आपको बोलता हूँ इस कलीसिया में भी अगर हम कुछ ऐसी बात बोलें जो वचन के अनुसार के विपरीत है तो हमसे आके बोलो आप गलत सिखा रहे हो. So I always say this, if in this church we teach something which you find is against the word, come and tell us you're teaching wrong. क्योंकि इस कलीसिया में हाईएस्ट अथॉरिटी, सबसे ऊंचा जो है वो परमेश्वर का वचन है. Because in this church the highest authority is the word of God. Amen. So शुरू करें थोड़ा खोल के. All right, hallelujah. कलीसिया में आज एक इम्बैलेंस है. There is an imbalance in the church today. और वो इम्बैलेंस क्या है? What is that imbalance? That people have become devil conscious. कि लोगों की मानसिकता जो है वो शैतान के इर्द गिर्द है. उनकी जो चेतना है ना, उसमें ये शिक्षाएं ने, ये जो शिक्षा है ना, जो शैतान दुष्ट आत्माएं, जनरेशनल कर्सेस, पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप और ये दुष्ट आत्मा और पूरी चेतना को क्या कर दिया है, उसको करप्ट कर दिया है. In their awareness, all they have is the devil, that demonic spirit, generational curses, that demon. Their entire awareness is corrupted by these wrong teachings. And people don't realize. और लोग नहीं पहचानते. But the more they focus on the devil, the more they magnify him. जितना ज्यादा वो शैतान पर ध्यान देते हैं उतना ज्यादा उसकी महिमा कर रहे हैं. So सब कुछ शैतान कर रहा है. टायर पंचर हो गया, शैतान ने मेरा टायर पंचर So कर दिया. everything the devil is doing, their tire gets punctured, the devil has punctured my अरे tire. शैतान के पास और इम्पोर्टेंट काम है आपके टायर पंचर करने से. Devil has more important works than puncturing your tire. इतना वेला नहीं है वो टायर पंचर करने आएगा. He's not jobless. Are you getting what I'm saying?
Because they are obsessed with these teachings, everything becomes demonic. क्योंकि उनकी मानसिकता में ये बातें घूमती रहती हैं, तो वो इस हर बात को दुष्ट आत्मा से, शैतान से जोड़ते हैं. And the enemy loves attention. और शैतान को पसंद है, दुश्मन को पसंद है जब उसको कोई अटेंशन देता है. जितना ज्यादा शैतान करोगे उतना बड़ा शैतान हो जाएगा. The more they'll do devil, the bigger the devil becomes in their life. शैतान कहेगा, अरे भाई सारे मेरे बंदे यहाँ हो. The devil will call all his guys, come इस here. घर में रेड कारपेट बिछा है हमारे लिए. There's a red carpet for us in this house. ओके, ठीक है अभी तक? You're okay? I am teaching you today how you can develop a victorious mindset. मैं आपको आज ये सिखा रहा हूँ कि कैसे आप एक जयवंत मानसिकता को बना सकते हो अपने जीवन में. There are two extremes in the body of Christ. मसीह की देह में दो विपरीत छोर हैं Both are unhealthy. और दोनों ही अस्वस्थ हैं. One is where they talk about demons all the time, curses, दुष्ट आत्माएं, all these things. पहला जहां पर वो हमेशा दुष्ट आत्माओं की, शैतान की और श्रापों की बात करते हैं, 24 घंटे इसी बारे में बात करते हैं. दूसरा छोर जहां पे वो ऐसे जीते हैं जैसे शैतान एग्जिस्ट ही नहीं करता. The other extreme where they live as though the devil doesn't even exist. They are completely unaware of the wiles of the devil. उनको दुष्ट की युक्तियों के बारे में कोई अंदाजा ही नहीं है. We have to stand where Bible tells us to stand. हमें वहां पर डट कर खड़ा होना है जहां बाइबल हमसे कहती है खड़े होने के लिए. Okay? And I want to tell you, और मैं आपको बताना in चाहता your story, हूं, आपकी कहानी में Satan is not the center. Jesus Christ is the center figure. शैतान आपकी कहानी का केंद्र नहीं है, यीशु मसीह आपकी कहानी का केंद्र है. Okay? Do you know there are no scriptures which tells us to go after Satan and fight the Satan? क्या आप जानते हैं कोई भी वचन ऐसे नहीं जो हमसे कहता है कि शैतान के पीछे जाओ, उससे लड़ो. The Bible says fight the good fight of faith. बाइबल कहती है विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ो. The Bible tells us to resist the devil. बाइबल हमसे कहती है शैतान का सामना करो. That means he's coming to us. We are not coming. We are not going. इसका मतलब वो हमें परखने के लिए आ रहा है, हम नहीं जा रहे उससे लड़ने के लिए. And what does the Bible say? When you resist him, what will happen? और बाइबल क्या कहती है, जब आप उसका सामना करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो भागेगा, मगर कैसे भागेगा? He will run. दुम दबा के अपना लंगोट पकड़ के भागेगा. With his tails within his legs. ओ पास्टर जी, वहाँ छतरपुर के ऊपर इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा है. ओ Pastor, there's a big demon over Chhatarpur. ओ अंकल जी, छतरपुर के ऊपर यीशु बहुत बड़ा है. Oh uncle, there is a huge Jesus over Chhatarpur. उस दुष्ट आत्मा से भी बड़ा है यीशु. That Jesus is much bigger than that demon. जितनी भी बड़ी हो दुष्ट आत्मा हो, वो No, चींटी है यीशु के आगे. No matter how big a demon is, it is an ant before Jesus. The Bible says बाइबल कहती है God will crush Satan under your feet. परमेश्वर शैतान को कुचल देगा आपके पांव के नीचे. He's not saying under my feet. He's already under God's feet. But he's saying, my child, my son, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे पांव के नीचे मैं शैतान को कुचलूंगा. वो ये नहीं कह रहा कि मेरे पांव के नीचे, but he's saying, my son, my daughter, I will crush the devil under your feet. Amen. यानी अपने जीवन में जितने शैतान के काम हैं, परमेश्वर आपको दिखाएगा. आपके पांव के नीचे हर एक शैतान का काम कुचला जाएगा यीशु के नाम में. This means every work of the devil against your life, the Lord will show you that he will crush that work under your feet. किसके पांव के नीचे? Under whose feet? बोलो मेरे पांव के Say नीचे. under my feet. पास्टर सामर्थ ने एक स्पॉन्टेनियस गाना बनाया था जब हम फेथ अरीना 1 के इनॉग्रेशन में थे. Pastor Samad made a spontaneous song in Faith Arena 1. कहते, शैतान की खोपड़ी है मेरे पांव के नीचे,
शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की Come on church, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे कहाँ पे? शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है Come on declare, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की Come on declare it, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा। शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे। कई विश्वासी खोपड़ी देख के डर जाते हैं। Believers are scared of घोषणा skulls. करो, खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की 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 खोपड़ी है तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन 1 2 1 2 तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, तो मैं जम के तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, तोड़ के नाचूंगा, तो मैं जम के नाचूंगा, बंधन तोड़ के नाचूंगा। शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान ये जय की ललकार है यीशु मसीह की जीवित कलीसिया की। This is the shout of victory of the living church of King Jesus. शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे। शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे। Come on, declare the victory. शैतान की हर एक जादू टोना आपके पाँव के नीचे, Every witchcraft is under your feet. बीमारी आपके पाँव के नीचे, Every power हर of एक darkness. कलेश आपके पाँव के नीचे। शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है, शैतान की खोपड़ी है मेरे शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी, शैतान की
हर दुष्ट की ताकत, हर दुष्ट की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, हर दुष्ट की ताकत है, हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे, हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है, शैतान की खोपड़ी है, हर दुष्ट की ताकत, हर दुष्ट की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, हर दुष्ट की ताकत है, हर दुष्ट की ताकत, हर दुष्ट की ताकत है, हर जादू टोना है, हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे, हर जादू टोना है मेरे पाँव के नीचे, हर जादू, हर कलेश और शराब है मेरे पाँव के नीचे, हर कलेश और श्राप है मेरे पाँव के नीचे, हर कलेश और श्राप है मेरे पाँव के नीचे, हर क्लेश और श्राप है, हर रोग बीमारी, हर रोग और बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग और बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग और बीमारी है मेरे पाँव के नीचे, हर रोग और बीमारी है, शैतान की ताकत, शैतान की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की ताकत है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की, शैतान का राज्य, शैतान का राज्य है मेरे पाँव के नीचे, शैतान का राज्य है मेरे पाँव के नीचे, शैतान का राज्य है मेरे पाँव के नीचे, शैतान का, शैतान की सेना, शैतान की सेना है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की सेना है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की सेना है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है, शैतान की, शैतान की खोपड़ी है मेरे पाँव के नीचे, शैतान की मेरे पाँव के नीचे, शैतान की खोपड़ी है, शैतान की खोपड़ी मेरे पाँव के नीचे। हालेलुया। ओके, प्रेज गॉड। प्रभु की स्तुति। चले टीचिंग में आगे। दिस वाज जस्ट टू गिव यू पर्सपेक्टिव ये आपको सिर्फ एक दृष्टिकोण देने के लिए था कि शैतान कहाँ है। that where the devil belongs. ओके, सो ना तो इस कुएं में जाना है ना उस खाई में जाना है। Neither do we have to go into that ditch nor into this pit. परमेश्वर का वचन का जो मार्ग है उसमें चलना है। The word of God is our path, is our way we should walk in. मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं ऐसे मसीहों से मिलता हूँ ना, मुझे I meet- बहुत दुख होता है उन पे। When I meet such Christians, such believers, I feel very bad for them. और वो इतने जिद्दी हो गए हैं अपनी उन चीजों में कि उनसे बाहर नहीं आना चाहते। And they've held on to these teachings and now they're stuck with them. They cannot come out of them. बिकॉज उनकी चेतना को, उनकी कॉन्शियंस को करप्ट कर दिया है गलत शिक्षाओं ने। Because their conscience, their awareness has been corrupted by these wrong teachings. एक परिवार मेरे पास आया, A family came to me one time. उनकी बेटी की एक डेथ हो गई थी और Their daughter had बाकी died. 2 बेटी बची। तो किसी के पास गई, किसी पास्टर ने उनको बोल दिया ये मृत्यु की आत्मा आ रही है और ये जो है सबको लेके जाएगी। मैंने कहा क्या नॉनसेंस है ये। They had gone to a pastor and the pastor said, this is the spirit of death and it will take everybody with him. And I said, what nonsense is that? अरे अगर मृत्यु की आत्मा आ रही है तो अधिकार ले लो उसके ऊपर। If the spirit of death was coming, why did you take authority over it?
ओके, सो एक्चुअली जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है ना, मैं आज आपसे सच बोल रहा हूँ, मुझे पता है बहुत सारे लोग इसकी वीडियो बनाएंगे, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, मगर इसीलिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है और इस देश में रखा है। I know many people will say many things, but I know why the Lord has anointed me and kept me in this जब country. आप ट्रेडिशन टीचिंग के अगेंस्ट जाओगे ना, तो शैतान बहुत लोगों को खड़ा कर देगा आपके विरुद्ध। When you will go against traditional teachings, the devil will raise many people against you. क्योंकि इन शिक्षाओं से उसने कई विश्वासियों को अपना बंधक बना रखा है। Because through these teachings, the devil has made many believers his slaves, in his bondage. Come on. मुझे याद है, मैं एक देश में जा रहा था I remember I was going to a nation और मेरे बगल में एक पास्टर बैठे थे। and there was a pastor next to me. तो जब हम लैंड करने वाले थे, When we were about to land, जब आप लैंड करने वाले होते हैं तो आपको शहर दिखने लग जाता when you're about to land, you see the city, you start to see the city. है। तो उन्होंने मुझसे कहा, He said to me, मैं जब भी किसी नए देश या नए शहर में जाता हूँ whenever I go to a new city, a new country, तो मैं देखता हूँ कि शैतान क्या कर रहा है इस जगह। I see what the devil is doing there. मैंने कहा, आप क्या करते हो? He said, what do you do? मैंने कहा, मैं उल्टा करता हूँ। I say, I do the opposite. मैं ये देखता हूँ कि पिता क्या कर रहा है इस देश में। I see what the Father is doing in this nation. We are not called to live in reaction to devil. We are called to live in response to the love of the Father. शैतान क्या कर रहा है उसके प्रति जवाब देते हुए नहीं जीना है हमें, लेकिन पिता जो कर रहा है उसके प्रति हमें जीना है। कुछ लोग ने इतनी दुष्ट आत्माओं की तरफ देखा कि जो परमेश्वर कर रहा है वो देखा ही नहीं। Some people kept on looking towards what the devil was doing, that they forgot to look at what God is doing. यीशु ने कहा, Jesus एक said, पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, मगर जो वो पिता को करते हुए देखता है वो करता है। तो जो पुत्र है वो किसको देखते हैं? शैतान को नहीं, पिता को देखते हैं। Jesus said, the son by himself can do nothing except what he sees the Father do. The sons don't look at the devil, the sons look at the Father and what the Father is doing. Satan should be the last of your concern. शैतान आपकी आखिरी चिंता होनी चाहिए। कई लोग कह रहे हैं ये क्या बोल दिया? Some people are wondering what am I saying. I said Satan should be last of your concern. शैतान आपकी चिंता की सूची में आखिरी होना चाहिए। आपका पूरी चेतना, आपका पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर और उसके वचन में बढ़ने की ओर होना चाहिए। All of your awareness, all of your conscience should be towards God and His Word and growing in it. मगर जब वो आए, When He comes, तो वो करो जो यीशु ने करा। then do what Jesus did. Jesus, when Satan came, जब शैतान आया यीशु मसीह का विरोध करने, When the devil came to tempt Jesus, came against him. Okay, let me first address something. जो spiritual warfare के नाम में जो nonsense होती है, आपने all the nonsense that happens in the name of spiritual warfare. ऊंचे पहाड़ों पे जाओ, Go to high mountains. bind the high territorial spirits. वो जो ऊंचे पर बड़ी दुष्टात्मा उनको बांधो। मैं क्यों आपको ये बोल रहा हूँ? Why am I telling you? मैं एक वो बंदा नहीं बोल रहा जो बाहर से जिसने ये चीजें देखी हैं, मैं वो बंदा बोल रहा हूँ जो अंदर जिसने ये सब किया है, टाइम वेस्ट। I'm not speaking as a guy who has observed from the outside. I'm speaking as a guy who has done it from within, wasted my time. ऐसे ग्रुप में था मैं, I was a part of such a group जहाँ हम ऊंची जगहों में जाते थे, where we would go to high places ऊंची दुष्ट आत्माओं को बांधने के लिए। to tie those high demonic spirits. कुछ ऐसी जगहों में गए, We went to some such places. वहाँ पे कुछ था एक फ्लोर का, There was something there, one floor. तो बोला टूट यीशु के नाम में, We टूट said, break, break in Jesus' name. टूट टूट टूट। Break, break, break. आज भी आप कई लोगों को देखेंगे वो ये एक वर्ड चिल्लाते रहेंगे, टूट टूट टूट, आउट आउट आउट। You will see many people who still do the same thing.
और फिर गए अगले महीने तो देखा एक जो फ्लोर था वो 2 फ्लोर बन गया. And next month we went, we saw 1 floor became 2 floors. क्या कर रहे थे हम? What were we doing? टाइम वेस्ट. We were wasting our time. क्यों? Why? क्योंकि किसके पीछे भाग रहे थे? What were we running after? शैतान के पीछे. After the devil. क्या एक भी आयत है बाइबल में? Is there शैतान even के one पीछे? verse in the Bible? यीशु ने दुष्ट आत्मा को कब निकाला? जब वो लोगों को चंगा कर रहा था, कोई चिल्लाने लग गया, उसने चल निकल. When did Jesus cast out demons? When he was about healing people, someone started to scream. He said, "Get out." दुष्ट आत्मा ही नहीं ढूंढ रहा था, He वो was not- बीमारों को चंगा कर रहा था. He was not hunting for demons. He was healing the sick. सो आज हमें समझना है ये जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर है. Today we have to understand this spiritual मैं जो warfare. इस ग्रुप में था, The group that I was part of, वहां पे बुक थी उनके पास सारी दुष्ट आत्माओं के नाम. they had a book that had the names of all the demons. Thousands of names. ऊजू, हजारों बूजू, नाम. गोजू, बोजू, मोजू. Too much emphasis on spiritual warfare has made so many believers devil conscious. आत्मिक मल्लयुद्ध पर बहुत ज्यादा चेतना लगाने ने बहुत से विश्वासियों को शैतान के प्रति कर दिया चेतना को उनकी. Are we in a warfare? क्या हम एक मल्लयुद्ध में हैं? Absolutely yes. बिल्कुल हैं. But what is true spiritual warfare? पर सच्चा आत्मिक मल्लयुद्ध क्या है? True spiritual warfare is the fight between truth and lies. सच्चा आत्मिक मल्लयुद्ध सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई है. Come फिर on. से इस बात को बोलता हूं कि आप इस बात को समझो. I'll say it again so you understand. असली आत्मिक मल्लयुद्ध ऊपर हवाओं में नहीं हो रहा, आपके 2 कानों के बीच में हो रहा है. True spiritual warfare is not happening up in the atmosphere. It's happening between your 2 ears. यहां हो रहा है. कहां हो रहा है? It's happening in your mind. सो बाहर जा रहे हो लड़ने के They लिए, are going out to fight, मगर यहां ध्यान नहीं दे रहे. but they're not focusing here. असली मल्लयुद्ध कहां हो रहा है? Where is the real warfare happening? In the Garden of Eden, अदन के बगीचे में. devil didn't come to Eve with a weapon, he came with a suggestion. शैतान एक हथियार लेकर नहीं आया था हवा के पास, वो एक सुझाव लेकर आया था. अगर इतनी ताकत होती उसके अंदर तो दोनों को उड़ा देता, वहां पे दोनों की गर्दन काट देता, खत्म खेल. If the devil had so much power, he could have killed both there. The story was over. Because devil knew he has no power, so he had to deceive Adam and Eve to take the authority which God had given them. क्योंकि शैतान जानता था उसके पास कोई ताकत नहीं है, उसको उनको धोखा देना पड़ा, वो अधिकार उनसे छीन लेने के लिए छल के द्वारा जो परमेश्वर ने उनको दिया था. हेलो, कहाँ चले गए? Where are you? वापस आ. Come back. ये चेतना का ही तो खेल है, चेतना को ही तो पकड़ना है, The whole thing is about your awareness. इसी को तो ट्रेन करना है. This is ये what जो you have to चेतना train. भाग जाती है हर जगह. The awareness that runs away again and again. You have to learn to catch it. राजमा बने, आज कड़ी बने, शाम को किससे मिलना है. Who do we have to meet in the evening? What's for lunch? That's the training. यही प्रशिक्षण है. So many people have learned so much spiritual gymnastics outside and have not learned to take control over their thoughts. बहुत से लोगों ने शारीरिक रूप में बहुत सारा आत्मिक जिम्नास्टिक सीख लिया स्पिरिचुअल वॉरफेयर के नाम पे, पर अपने विचारों को नियंत्रण में लाना आज तक नहीं सीखे. Being ignorant that the spiritual warfare is not happening outside in a location, it's happening in their minds. इस बात से अनजान है कि आत्मिक मल्लयुद्ध किसी ठिकाने पर शारीरिक जगह पे नहीं हो रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है, उनके विचारों में. And Satan is a master deceiver. और शैतान धोखा देने में एक नंबर का है. Okay? So, कई हैं वो, प्लीज अंडरस्टैंड माई हार्ट. मेरा दिल समझना. मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं. आई एम नॉट सेइंग समथिंग. आई एम अगेंस्ट द रॉन्ग टीचिंग्स. मैं गलत शिक्षाओं के खिलाफ हूं. जिसने मसीहों को जो जैवन से भी बढ़कर हैं उनको
बंधन में डाल दिया है। Those wrong teachings which have put the believers who are more than conquerors into bondage. और मैं ये खुद नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस व्यक्ति का नाम बोलता हूँ। दिल्ली में एक व्यक्ति है, उनका नाम टॉम वाइट था। I'm not saying this myself. A man named Tom White was in Delhi. और वो जो स्पिरिचुअल डिलीवरेंस मिनिस्ट्रीज होती हैं, डिलीवरेंस, जो पूरा डीमन जिसके अंदर नहीं भी है उसके अंदर भी घुसा देंगे। And all those deliverance ministries that try to cast out demons that don't even exist. और वो कह रहे थे कि 40 साल हमने वो किया, 40 साल पहाड़ों में जाके, हाई प्लेसेस में जाके दुष्ट आत्माएं। He said for 40 years we did that. We went to high places, to different mountains to bind the demons up there. और वो कह रहे थे हमारी मिनिस्ट्री में कोई फ्रूट नहीं था, उसका कोई फल नहीं था। And he said our ministry had no fruit. और आखिरी में In the end, एक दिन वो 40 साल बाद घर आए after 40 years he और came अपनी home one पत्नी day को बोला, and told his wife. हनी, गॉड हैज डिलीवर्ड मी फ्रॉम डिलीवरेंस मिनिस्ट्री। उन्होंने कहा परमेश्वर ने मुझे ये छुटकारा देने वाली सेवकाई से छुटकारा दे दिया है। अगर सुसमाचार नहीं समझोगे तो हर मीटिंग में उल्टी करते रहोगे। If you don't understand the gospel, you'll be vomiting in every meeting. आपको तेल पानी पिला पिला के पेट फुला देंगे। They will keep feeding you oil and water and your stomach will swell. क्या मैं ये कह रहा हूँ दुष्ट आत्माएं नहीं होती लोगों के अंदर? Am I saying No. people don't बिल्कुल have होती demons? हैं। No, people have और हम demons. निकालते हैं। And we cast them out. मगर उसके लिए जो पहली बार मसीह के पहली बार चर्च आया, But those who come for the first time to the Lord, to the church, उसके लिए नहीं, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है। एक पवित्र आत्मा का मंदिर वह उल्टी कर रहा है, ये उसके मंदिर को शोभा नहीं देता। not for those who are the temple of the Holy Spirit. If a temple of the Holy Spirit is vomiting because of things, it's not good for it. जानो आप कौन हो कलीसिया। Know who you are, church. आंखें खोलो और जानो मसीह ने आपके लिए क्या किया है। Open your eyes and see what Jesus has done for you. कहां आप बिठाए गए हो? Where you have been seated, you placed. अरे उसका वचन कहता है कि पिता ने जब यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया तो हमें भी जो पाप में मरे हुए थे यीशु मसीह के साथ जिलाया और सारी प्रधानताओं से, सारे सामर्थ से, सारी दुष्ट आत्माओं से बहुत ऊपर स्वर्गीय स्थान में मसीह के साथ बिठाया है। The Bible tells us when the Father raised Jesus from the dead, we who were dead in our sins, the Father raised us up together with Christ and made us sit in the high place above all the principalities and powers and darkness. Amen. कई लोग फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं। Many people are looking for a formula. एक टेम्पररी सोल्यूशन मिल जाएगा। You'll get a temporary solution. ले हैंड पावरफुल है, Laying hand is powerful. बट वी कैन नॉट मेक इट द फोकस ऑफ आवर मिनिस्ट्री। लेकिन हम उसको अपनी सेवकाई का केंद्र नहीं बना सकते। क्योंकि आप भी परेशान हो जाओगे भीड़ में और मुझे भी परेशान कर दोगे। Because you'll be tired and I'll be tired. मैं आपको सत्य सिखाना चाहता हूं जो आपको हर बंधुआई से आजाद कर देगा। I want to teach you the truth that will set you free from every bondage. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। I'm giving an example. एक परिवार है A family, और उनको बार बार पेट में दर्द हुआ, एक्सट्रीम दर्द। and they felt pain in their stomach again and again, extreme pain. डॉक्टर के पास गए, ब्लड टेस्ट हुआ तो पता चला इन्फेक्शन है। They went to the doctor, they found out there's an infection. तो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दे दी, Doctor gave them antibiotic. उन्होंने एंटीबायोटिक खाई, They ate the antibiotic. दर्द चला गया। The pain left. 2 हफ्ते बाद After 2 weeks, दर्द दोबारा आ गया। again the pain occurred. फिर डॉक्टर के पास गए, Went to the doctor, ब्लड टेस्ट किया, did the blood पता test. चला दोबारा वो इन्फेक्शन आ गया। Again the same infection. दवाई दी, Took the medicine, दर्द चला गया। pain left. 2 हफ्ते बाद, 2-3 After हफ्ते 2 बाद दोबारा आ गया। After 2 weeks, again the same pain. जो ले हैंड है ना वो एंटीबायोटिक है। Laying hands is like antibiotic. मैं बहुत जरूरी है एंटीबायोटिक, It's important. Antibiotic is important. जिंदगी भर ले हैंड में तो नहीं जी सकते। You cannot live all your life through lay hands. एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री भागते रहोगे। You'll keep running from one ministry to the other.
अगर सत्य नहीं सीखा। if you don't learn the truth. सो तीसरी बार डॉक्टर पे गए, So the third time he went to the ब्लड doctor. टेस्ट हुआ, There was a blood test पता done. चला फिर से इन्फेक्शन है। Again the same infection. तो डॉक्टर ने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है, The doctor said there is some problem. ऐसा नहीं हो सकता। This cannot happen. तो एक टीम को भेजा गया So कि a उनके team- घर में क्या खाते हैं क्या पीते हैं। So a team was sent to find out what they eat and drink. तो पता चला उनका जो पानी का कनेक्शन है उसमें सीवर लाइन से गंदा पानी मिल के आ रहा था। They got to know that their water connection was connected to a sewer line and dirty water was coming to their तो वो house. जो पानी पीते थे The water they were drinking इन्फेक्शन अंदर हो जाता। was causing infection. अब मुझे एक बात मैं आपसे आज पूछता हूँ, Now tell me something I want to क्या ask वो you. परिवार एंटीबायोटिक खा खा के पूरी जिंदगी जी सकता है? Can that family live like this depending on antibiotics all क्या their life? चाहिए उन्हें? What do they उन्हें need? एंटीबायोटिक नहीं चाहिए, उनको पानी को चेंज करना है। They don't need the antibiotic, they need to change the water. जब तक वो पानी पिएंगे As long as they will drink that water, उसका जो रिजल्ट है वो ये होगा कि उनको इन्फेक्शन होगा। the result of that will be it will cause an infection in their body. आप गए मिनिस्ट्री में, आपके ऊपर ले हैंड हुआ, अच्छा है एंटीबायोटिक है, कुछ टाइम के लिए चीज चली गई, मगर अगर सोच नहीं बदलोगे तो वहीं गड्ढे में चले जाओगे जहां से आए थे। You went to a ministry, they laid hands and you were delivered for some time, but if you do not change the way you think, you'll go to the same ditch where you were before. इसीलिए हाँ, इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो एंटीबायोटिक तो चाहिए, If you need instant relief, you need an antibiotic. मगर एंटीबायोटिक के साथ But along with सबसे that, पहले पानी को चेंज करना है। first change the water. कई लोग आज बंधन में हैं बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग थिंकिंग। Many people are in bondage today अपनी गलत सोच विचारधारा के कारण. ले हैंड दुष्ट आत्मा को तो भगा देगा, Lay hand will make the demons flee. मगर ले हैंड आपकी सोच को नहीं बदल सकता। माइंड रिन्यू करना है तो वचन सुनना पड़ेगा, वचन के अंडर बैठना पड़ेगा। But lay hand cannot renew your mind. If you want to renew your mind, you have to sit under the word, you have to learn the word. आपने देखा है जिस दिन हम ले हैंड करते हैं क्या होता है, बाहर पूरा लॉन में जगह नहीं थी, गेट में जगह नहीं थी, 1500 लोग बाहर चले गए। You see, when we do a lay hand service, there are so many people outside in the lawn, there was no space in the facility. That tells you why the church is like that, ये हमें बताता है कि कलीसिया ऐसी क्यों है. क्योंकि उन्हें वचन नहीं चाहिए, Because they do not want the word. उन्हें ले हैंड चाहिए। They want a lay hand. ठीक है, ले हैंड ले लो। ठीक है, take the lay hand. एंटीबायोटिक खा के तुम डिसाइड करो जिंदगी भर एंटीबायोटिक खाओगे, फिर बीमारी आएगी, फिर ऐसे ही जीना है तो जियो। You decide if you want antibiotic and then again get sick and take an antibiotic again. That's how you want to live all your life. या स्रोत को बदल दो। Or you can change the source. आमीन। आत्मिक मलयुद्ध असली में जो गलत झूठ हमने शैतान के विश्वास किए हैं उनको रिप्लेस करना है, उनको हटाना है परमेश्वर के वचन के सत्य से। True spiritual warfare is when you remove the lies that you have received from the devil through the word of the living God. कई मसीह हैं घर पे अकेले हैं, Many believers, they are alone at their house थोड़ा पत्ता हिला, and a leaf shook. थोड़ा पंखे से पेपर हिला, A paper moved because of the fan. हुई 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 हो गया। Oh, now they're afraid. अंधेरा हुआ It got dark. तो सबसे पहले चेतना कहाँ जाती है? हाँ, काला साया खड़ा है। The first awareness they have is there's a dark shadow. ठीक है, काला साया खड़ा है, मान लिया मैंने, काला साया खड़ा है वहां Okay, पे है, मान लिया। I believe it, there's a dark shadow. अरे तो यीशु तो अंदर ही है ना। The Jesus is still inside you. लाइट गई और अंधेरा हो गया तो यीशु थोड़ा छोड़ के चला गया। अरे वो जो ज्योति है वो तुम्हारे अंदर विराजमान है। If there was dark and if it got dark outside, then the one who is called the light is still living in you. कि यीशु मसीह ने कहा ओह यार लाइट चली गई थी भाई, मैं थोड़ा डर गया था, मैं स्वर्ग चला गया था। So Jesus said, oh, there was no light, so I also got afraid and I went to heaven. अरे अपने सोचने के नजरिए को बदल डालो। Change the way you think. आप पवित्र आत्मा का मंदिर हो। You are the temple of the Holy Spirit. पुराने नियम में जब जो वाचा का संदूक था वहां पे एक देवता था, उनका नाम, जिसका नाम था डेगोन, जिसकी वो आराधना करते थे। In the Old Testament, we read about
a temple of the god they worship called Dagon. और वहां पे उसके मंदिर के अंदर संदूक रख दिया। And they kept the ark of the covenant inside his temple. संदूक में क्या था? What was inside the 10 ark? आज्ञाएं, The 10 मन्ना commandments, some और manna, एरन की रॉड। and Aaron's rod. ओके, ठीक है। पुराने नियम में वो रिप्रेजेंट करता था परमेश्वर की ग्लोरी, उसकी उपस्थिति को। In the old covenant, it represented God's glory, His वहां presence. रख दिया, So they kept it there चले गए। and they left. जब सुबह आए In the morning when they came, तो देखा डैगन की मूर्ति टूट के सर के बल उसके आगे गिरी हुई है। and they saw that the statue of Dagon fell on its face and it broke. अरे वो संदूक था। It was just अरे an ark. आपके अंदर तो जीवित यीशु रहता है। The living Jesus lives inside of you. कलीसिया, ये समय है हम सुसमाचार में खड़े हो जाएं Church, this is the time we stand in His gospel और समझ जाएं कि असली सुसमाचार क्या है। and understand what true gospel really is. आमेन, हालेलुया। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। I'll give you another example. बुक में बहुत सारे, The book has many examples. थोड़े से दे रहा हूँ। I'll give you some. सोचो एक व्यक्ति पार्क में बैठा है, Imagine a man is sitting in the park. उसके पास गन है। He has a gun. यूएस में आप गन ले सकते हो आराम से। In US, you can easily buy guns. तो यूएस में वो व्यक्ति So the guy is in US. गन है, He has a gun. पार्क में बैठा है, बेटा बगल में खेल रहा है। His son is playing right next to him. एक वैन आई, A van came. अचानक से रुकी, दरवाजा खुला, The door opened. मास्क पहन के 4 लोग बाहर आ गए। 4 people came wearing a mask. बच्चे को पकड़ा, Took the kid. वो चिल्ला रहा है, The child is पापा मुझे screaming, बचाओ, पापा बचाओ। Dad, save me, save me. और व्यक्ति कुछ नहीं कर, And the guy does nothing. उस बच्चे को उठाकर उन्होंने वैन के अंदर फेंका, They kidnapped the kid, threw him in the van, और वैन स्पीड से चली गई। and the van rushed off. ये व्यक्ति गुस्से से पुलिस स्टेशन जाता है This man got so angry and went to the police station और उनसे कहता है, and tells them, मेरा बेटा किडनैप हो गया, my son got kidnapped. तुमने क्यों नहीं कुछ किया? Why didn't you do anything? तो सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोर्ट में चला गया केस। So the case goes to the court. सीसीटीवी था कैमरा वहां पे पार्क They में, had a CCTV camera in the park. फुटेज निकाली गई, They got the footage out. जज ने फुटेज देखी, The judge sees the footage. इसके पास गन थी, He had a gun. 4 लोग आए, 4 people came. इसने कुछ नहीं किया। He did nothing. He was charged as guilty of that kidnapping. तो उसको उस किडनैपिंग में दोषी ठहराया जाएगा उसके लिए. क्यों? Why? क्योंकि जो उसके पास था उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया। Because he did not use what he had. जब आप यीशु में आए, When you came to Jesus, आप कीड़े, आप प्रभु हम कीड़े, हम कुछ नहीं। oh, we are worm, Lord, we are nothing. फॉल्स ह्यूमिलिटी से नफरत है परमेश्वर को। God hates false humility. रिलीजियस लोग जो होते हैं ना, हाइपर रिलीजियस, वो ऐसी फेक ह्यूमिलिटी दिखाते हैं। Hyper religious people उन्हें show लगता है such कि ऐसा fake करके humility. हम ऐसे खुश, ओ खुदावन हम तो नाली के कीड़े हैं खुदावन। And they think by this God will be pleased. Oh Lord, we are a worm. Heaven's access is shut. स्वर्ग का जो प्रवेश है उनके लिए बंद हो जाता है. अगर इस ड्रामेबाज को साइड कर, Put this dramebaz somewhere else. उसको पता है वो ड्रामा कर रहा है। He knows he's acting. मतलब परमेश्वर ने नाली के कीड़ों को स्वर्गीय स्थान में बिठा रखा है यीशु के साथ। So God has put worms in the kingdom of heaven on the throne. अरे जानो कि तुम कौन हो मसीह में। First, know who you are in Christ. हर एक चीज की कीमत कैसे पता चलती है मुझे बताइए। How do you find out the value or the worth of everything? अगर मैं आपके जूते देखूं और मैं कहूं ये जूते कितने के हैं, आपको कैसे पता वो कितने के हैं मुझे बताओ। If I see your shoes and ask you the cost, how did you know the cost? तो प्राइस टैग अभी लगा है क्या जूते में? Is there still the price tag on it? हाँ, आप क्या, जितना दाम चुकाया जाता है उसके लिए ये बताता है उस चीज की कीमत कितनी है। The amount of money you paid to get those shoes tells you the worth. एक जूता 200 रुपए का भी आता है, You can buy और a आज shoe ऐसे for भी 200. जूते हैं जो 1 लाख के भी आते हैं, 2 लाख के भी आते Today you have shoes worth 1 हैं, lakh, 2 दोनों lakh. जूते हैं।
both are shoes. मगर अगर एक जूते के लिए एक व्यक्ति 3 लाख रुपए दे रहा है, यानी वो जानता है कि ये जूता इसकी इतनी कीमत है. But if a man is paying 3 lakh to buy a pair of shoes, he knows that these are worth 3 lakh. जब मानव जाति पाप की बंधुआई में चली गई When mankind went under the और slavery of sin, परमेश्वर को मानव जाति की कीमत चुकानी थी, and God had to pay the price for तो mankind, सोना और चांदी से भी नहीं चुका सकता था. He could not have paid it with तो gold उसने and silver. सबसे कीमती चीज, बाइबल कहती है, तुम्हारा उद्धार नाशवान सोने और चांदी से नहीं हुआ, मगर परमेश्वर के लहू से तुम खरीदे गए हो. अरे अपना दाम समझो कि आप कितने कीमती हो. You are not saved by gold and silver which perishes, but by the blood of God Himself. Find out, get to know how precious you are to Him. There are many believers who got saved and they'll go to heaven. बहुत से विश्वासियों ने उद्धार पाया, स्वर्ग भी जाएंगे. But because their mind remains unrenewed, they will live as slaves on this earth. लेकिन क्योंकि उनका मन कभी नया नहीं हुआ है, वो नौकरों की तरह, दासों की तरह जिएंगे पृथ्वी पे. अगर उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, उसका बेटा ले गया, If that man did nothing and his son was kidnapped, तो पुलिस उससे पूछेगी, तूने क्यों नहीं किया जब तेरे पास गन था. the police would question him, why didn't you do something when you had a gun? जब शैतान बीमारी डालने की कोशिश करे आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आप बोले प्रभु तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, तो यीशु बोलेगा, जो अधिकार मैंने तुझे दिया तूने इस्तेमाल क्यों नहीं किया उसे. If the devil tries to bring sickness against you or your children and you do nothing and you say, Lord, why did you do this to me? He will say, why did you not use the authority that I gave to you? Okay? Put Luke 4:19. हाँ, बाइबल के यीशु ने क्या किया, मैंने तुम्हें क्या दिया है, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का. यीशु क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें क्या कह रहा है, दूंगा. 40 दिन उपवास के बाद स्वर्ग में कब वो क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें अधिकार. यीशु ने कहा, Jesus said, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. He's not saying I'll give you authority after you fast 40 days. या मैंने तुम्हें अधिकार. पढ़ते हैं साथ में, देखो. सबसे पहले बोलो देखो. ये प्रॉब्लम है, लोग This is the देखते नहीं problem. है. We don't see. ये देखने का मतलब इन आंखों से देखना नहीं है, It's not इन saying- आंखों से देखना है. It's not saying see from these eyes, but see from these eyes. The word here is behold. That means continual gaze. निरंतर देखते रहना. ये एक आयत, केवल ये एक आयत, अगर इसमें खड़े हो गए If you stood on this one verse, तो आप धधकती आग और शैतान भाग भाग भाग. you'll be a fiery flame and the devil will flee from you. प्रॉब्लम क्या है आज कि कितने मसीह लोग अपनी फीलिंग से जीते हैं और जो वचन में लिखा है उससे नहीं जीते. The problem is many believers live by what they feel and not by what the word says. और जब आप फीलिंग से जीते हो ना, तो शैतान तो मास्टर है फीलिंग्स को डिसीव करने में. आपको फीलिंग्स, And when you live by your feelings, the devil is the master of deceiving you in your feelings. आज लोग क्या करते हैं, शादी करते हैं, फिर कुछ टाइम कहते हैं आई डोंट फील लाइक लविंग हर एनी मोर. People they get married and they say, अब मेरा मन नहीं करता उससे प्यार करने का, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता. लव इज नॉट अ फीलिंग, प्यार एक भावना नहीं है, इट्स अ कमिटमेंट. ये एक वाचा है, एक वायदा है. यू सेड टिल डेथ डू अस अपार्ट. वो वाचा है कि मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे. फील नहीं हो रहा, I don't feel it. फीलिंग से जियोगे तो सबसे ज्यादा टेरिबल लाइफ जियोगे. If you will live through your feelings, you will live the most terrible life. वचन से जियोगे तो जय में जियोगे. If you will live by the word, you will live victoriously. There is so much. मैं अभी सोच नहीं, मतलब अभी इतना कुछ सारे स्क्रिप्चर मेरे आगे, मैं सोच रहा हूँ किसको आपको कैसे एक मोती बना के आपको दूं ये माला कि आप हमेशा पहनो इसे. There are so many scriptures in front of me. फिर से इस आयत को पढ़ेंगे दोबारा. Let's लगा read it again.
मेरे पीछे बोलो, आई एम नॉट लेड बाय फीलिंग्स, आई एम लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। बोलो, मैं भावनाओं के चलाए नहीं चलता, मैं परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलता हूँ। और आत्मा हमेशा आपको वचन में लेके जाएगा। And the Spirit will always lead you into His word. Some people have become so weird. Holy Spirit said that, Holy Spirit said that. अरे पवित्र आत्मा अगर आपसे 24 घंटे बात करता है ना, तो वो आपको वचन में लेके जाएगा। कुछ लोग बहुत ही अजीब कहते हैं, पवित्र आत्मा ने ये बोला, पवित्र आत्मा ने वो बोला। If the Holy Spirit will speak to you, He will always lead you into His word. हाँ, एक व्यक्ति था, कह रहे मैंने ब्रश नहीं किया बहुत दिन से क्योंकि पवित्र आत्मा ने नहीं बोला। One man said, I haven't brushed since many days because Holy Spirit didn't tell me to brush. ये शिक्षाओं ने भ्रष्ट कर दिया है कई लोगों को। This is how wrong teachings have corrupted many people. फिर वो कहता है मेरे कोई दोस्त नहीं है। And then they say, I have no friends. अरे चूहे मारने की बात आ रही है मुंह से। Holy Spirit is the spirit of sound mind. पवित्र आत्मा एक सही मन का, सही अरे बुद्धि वो का आत्मा है। बुद्धि का आत्मा है, जिससे पवित्र आत्मा बात करता है ना, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति दिखेगा He आपको। is the spirit of wisdom. A person whom the Holy Spirit speaks to, you will see them walk in great wisdom. Weird नहीं बनाएगा आपको। He will not make you weird. Jesus was not weird. यीशु मसीह अजीब से नहीं थे। Some people become so spiritual weird. कुछ लोग आत्मिक रूप से अजीब हो जाते हैं, Sound mind. लेकिन सही बुद्धि का आत्मा। ओके, क्या है? Sound mind. चलो इस आयत को देखते हैं। Let's see this verse. देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की थोड़ी सी सामर्थ पर अधिकार। Behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions and over little power. क्या सही नहीं बोला मैंने? सारी वो बड़ी प्रधानताएं जो छतरपुर के ऊपर है, All the big principalities over Chhatarpur. वो भी, वो बड़ा सांप जो आपको दिखाई देता है, That big snake that you saw. वो भी, Even वो that- काला साया जो आपको ऐसे That देखता है, dark shadow you saw in your house. वो भी, Even that. वो जो जादू टोना वाले तंत्र मंत्र करे, वो भी। And the witch doctors that are doing witchcraft against you. Even पक्की that. बात। For sure. तो अब ऐसे पढ़ते हैं जैसे हम मानते हैं जो वचन में लिखा है। And now let's read as though we believe what the word says. तैयार हो? एक साथ पढ़ेंगे। मैं Are you कहूँगा ready 1 to 2 read 3 together? साथ में घोषणा करेंगे। तैयार हो? We will declare together. 1 2 3। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। अरे पर पास्टर जी हमने ना वहां गए थे, हम दुष्ट आत्मा निकालने, Oh, Pastor Ji, we went there to cast out demon. अब ना अटैक होगा हमारे ऊपर। Now there will be attack on us. ये बदलो। Change this. ओके, मैं चाहिए। मैं क्यों आपको ये बात बता रहा हूं? Why am I telling you this? क्योंकि मैं वो व्यक्ति था Because I was that person. जब हम मसीह में नहीं थे, When we were not in the Lord, एक दुष्ट आत्मा ने मेरी माँ को सताया बहुत टाइम तक। a demonic spirit tormented my mother. मेरे वहाँ शहर में, गांव में वो आराधना होती है उन आत्माओं की। In my village, they worship that demon. सो जब मैं अपनी माँ को देखता था ना When I would look at my कि mother, वो ऐसे सता रहा है, तो जब मैं मसीह में आया when I would look at my और मुझे mother, पता चला कि हमारे ऊपर हमारे पास अधिकार है, I तो found out मैं ऑब्सेस हो गया स्पिरिचुअल वॉरफेयर से। how I saw my mother tormented, and when I came to the Lord, I found out I have authority. I was obsessed with casting out demons with the आप power. मैं मेरे सामने गवाह पास्टर सामर्थ, पास्टर मोनिका, पास्टर देवश्री हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। मेरी चर्च में मेरा नाम पड़ गया था कि ये एक्सपर्ट है दुष्ट आत्माएं निकालने, जहां दुष्ट आत्माएं मुझे भेज देते दुष्ट आत्मा निकाल। This was known about me in the church. He's an expert in casting out demons. Wherever there was a demon, they would send me.
सो मैं हर मीटिंग में जाता टेणे टेणे So I किसके would go अंदर to है a दुष्ट आत्मा? meeting hunting for a demon. टेडेंग टेंग टेडेंग टेंग टेडेंग ये थोड़ा अजीब लग रहा है, ये मोटा जो समोसे खा रहा है थोड़ा हिल रहा है। सो मुझे पता भी नहीं चला कब मैं आत्मिक एड़ा हो गया। I didn't even realize I became weird spiritually. सो आज आपको सिखा रहा हूं कि आत्मिक एड़े ना बनो आप। So today I'm teaching you, don't be weird spiritually. और अपने कमरे में मैं शैतान से बात करूं, शैतान मैं तेरी वाट लगा दूं, And in my room I would be talking to the devil. Devil, I will do this. I शैतान will, मैं do that. तेरे राज्य को नाश करूं। I will destroy your kingdom. अरे मैं यीशु मसीह थोड़ा हूं, I'm not Jesus. अरे यीशु मसीह ने नाश कर दिया पहले से उसका राज्य। Jesus has already destroyed his kingdom. तो क्या है, 24 घंटे दुष्ट आत्माओं से बात करो, 24 hours I was talking to demons. बुक्स पढ़ रहा हूँ दुष्ट आत्माओं के, I'm reading books about demons. वीडियोस देख रहा हूँ दुष्ट आत्मा। Watching videos about demons. तो क्या हुआ, What happened? अब रात को आ रहे हैं कमरे में दुष्ट आत्मा। They started to visit me at night. क्योंकि आप कहाँ जाओगे, जहाँ आपको वेलकम किया जाता है वहीं तो जाओगे। Where do you go? A place where you're welcomed. तो कुछ लोग इतना दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा करते हैं कि दुष्ट आत्मा कहते हैं ये है हमारा प्यारा दोस्त। Some people talk about demons, demons, demons so much. Demons think this is my best friend. और एवरी नाइट आई स्टार्टेड टू हैव नाइटमेयर्स। हर रात को मुझे डरावने सपने आने लग गए। एवरी नाइट। हर रात। मैं सुबह जब उठता था तो ऐसा लगता था मेरा शरीर निचोड़ दिया किसी ने। When I would wake up in the morning, I would feel drenched in my body physically. It came to a point when I couldn't take it anymore. उस जगह आ गया जब मैं और झेल नहीं पा तो रहा। मैं परमेश्वर के पास गया, मैंने कहा प्रभु मैं अब और नहीं झेल सकता। I came before the Lord and said, Lord, I cannot take this anymore. प्रभु ने मुझे कहा बेटे तेरा फोकस गलत है। The Lord said, son, your focus is wrong. He said you are focusing on demons तुम दुष्ट आत्मा की ओर अपना दिमाग and लगा that focus और वो is allowing them to torment you. और वो फोकस उन्हें अनुमति दे रहा है कि वो तुम्हें सता सके। He said give me your awareness. उसने कहा अपना ध्यान मेरी ओर कर दो। उस दिन मैंने रिपेंट किया That day I repented. और मैंने दुष्ट आत्माओं से हट के पूरी अपनी चेतना परमेश्वर के ऊपर लगा दी। And I shifted all of my awareness from demons and I put it all on उसके God. वचन को On His मनन word. करने में लगा दी। I started to meditate on His word, put my और awareness वो on it. दिन है और आज का दिन है, 15 साल से ऊपर हो गए, कोई अटैक नहीं हुआ, कोई And डीमन नहीं आया। that day till today, 15 years, no demonic attacks. मेरे आत्मिक घर के बाहर एक बोर्ड लगा है डीमंस नॉट अलाउड इनसाइड। Outside my spiritual home, there is a board that says दुष्ट आत्माएं अंदर अलाउड नहीं है। कुछ सीख रहे हैं हम? Are you learning something? We are not called to be militants in the kingdom. हम उग्रवादी नहीं बनने हैं राज्य में। We are called, we are already seated with, seated का मतलब काम खत्म है, बैठे हो आप seated, हम पहले से सिंहासन पर बैठाए गए हैं। बैठे। The work is over. कहाँ बैठे हो? मसीह के साथ। You are seated Being next to seated Christ. is the prophetic sign of rest. You have, the work has been done. बैठाया जाना ये एक चिन्ह है कि आप विश्राम में आ चुके हो, काम खत्म हो चुका है। ओके सो मैं फिर से गार्डन में आपको ले चलता हूँ। जब शैतान सबसे पहले When at आदम और first, हवा के पास आया, when the devil came to Adam and Eve at first, प्रभु ने अधिकार किसको दिया था? ओके लेट्स गो टू जेनेसिस 1:26 लगाइए। ओके पास टाइम पढ़िए हिंदी में। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। क्या रखे? जोर से बोलो, क्या रखे? किसको दिया था अधिकार? Who did God give authority to? आदम और हवा को। To Adam and Eve. सो शैतान को अधिकार नहीं था। Devil had no authority. सो शैतान ने क्या किया? उसने डिसीव किया ईव को। The devil deceived Eve. ईव को बोला डिड गॉड रियली से? He told Eve, क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कहा है? क्या सच में वचन ऐसा कहता है? Really does the word say that?
सजेशन लेकर आया, He brought a suggestion. वेपन नहीं लेके आया। हथियार लेके नहीं. आज लोग कहते हैं हमारे घर में हमें दुष्ट आत्मा दिख गई। क्या चाकू मार दिया दुष्ट आत्मा ने? Today people say, oh, I saw a demon in the house. Did क्या they stab किया? you? What did they do? आपके थॉट्स में आपको ऑप्रेस किया। Oppress you in your thoughts. Because of that, he was able to put sickness in your body. उसके कारण वो बीमारी ला सका आपके जीवन में. So, हवा को सजेशन दिया, क्या प्रभु ने सच में कहा है कि ये पेड़ का फल मत खाना? तो हवा बोलती है परमेश्वर ने बोला ये पेड़ का मत खाना और उसको छूना भी मत। अरे परमेश्वर ने छूने की कोई ऐड कर दिया उसमें। So the devil said, did God say, do not eat the fruit of this tree? And Eve said, he said, don't even touch it, not just eat. वो दर्शाता है that Eve was uncertain about God's command. That tells us कि ईव जो थी वो परमेश्वर की आज्ञा के लिए उसको पता नहीं था पूरी तरह से. हाँ, बहुत अच्छा है आप लोग डिक्लेरेशन सीख रहे हो, उसके कोड़े खाने से हम चंगे होंगे। अरे पर ये भी जानो कि सुसमाचार क्या है। ये मंत्र थोड़ा है कि जिंदगी भर के लिए होते हैं, उसके कोड़े खाने से हम चंगे, उसके कोड़े खाने। अरे कौन है वो, किसके कोड़े, क्यों खाए उसने कोड़े, वो भी तो सीखो। It's good you are learning to declare that I'm healed by the stripes of Jesus, but it's not a mantra that you'll keep on repeating all your life. Learn who he is. Why did he take those stripes on his back for you? यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर बंधुआई से आजाद करेगा। Jesus said, I will tell you the truth and the truth will set you free from every bondage. कौन आजाद करेगा? Who will set you free? मैंने आपको गवाही बताई एक व्यक्ति की जो सुसाइड कर रहा था, वो यहाँ पे आया ऑस्ट्रेलिया से। I told you the testimony of a man who प्रे was कर। wanting to commit suicide. He came here, said, pray for me. मैंने कहा नहीं करूँगा प्रे। I said, I will not pray. तुझे वचन सिखाऊंगा। I'll teach you the word. तो अपनी वाइफ को फोन कर, अरे इस पास्टर के पास तो कोई पावर ही नहीं है। He called his wife and said, this pastor has no power. मैं आपको सच में बता रहा हूँ, अभी विल स्टार्ट, आई कैन फ्लो इन गिफ्ट्स, आई कैन कॉल आउट नेम्स, मैं नाम पुकार सकता हूँ लोगों के प्रभु की आत्मा से। आई कैन मेक दिस मिनिस्ट्री ऑल अबाउट हीलिंग एंड सुपरनैचुरल। मैं चाहूँ तो इस सेविका को पूरा चंगाई और अलौकिक के बारे में बता एंड ऑल अबाउट मी, और सब मेरे बारे में मेरे पास आओ, ले हैंड करो, और टेस्टमनी भी बहुत आएगी। मगर मेरा हृदय है कि आप वचन में बढ़ो, उसमें परिपक्व हो और खुद योद्धा बन जाओ परमेश्वर के राज्य। My heart is that you grow in the word, you become champions in faith. कि आधी रात में जब पेट दर्द हो तो मेरी जरूरत नहीं है आपको। That in the middle of the night, if you have a stomach ache, you don't need me. यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा, सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। Jesus said, I will tell you the truth and the truth will set you free from every bondage. ईव अनसर्टेन थी, उसको पता नहीं था प्रभु ने क्या कुछ ऐसा कहा है, उसने ऐड कर दिया उसमें। Eve was शैतान ने पकड़ ली वो बात, ये खड़ी नहीं है वचन पे, तो उसने क्या किया, अब वो डर, पहले उसने क्या किया, सजेशन दिया। क्या सजेशन दिया? क्या प्रभु ने सच में कहा है कि किसी पेड़ के फल नहीं खा सकते? Eve was uncertain of God's command, and the devil caught that Eve doesn't know what God has said. So now he said, did God say don't eat any fruit of any tree? एक लड़की मिली मुझे, I met a girl. वो इतनी कन्विंस थी, उसने बाइबल पढ़ी होगी और उसने यिर्मयाह या किसी आइज़ाया में पढ़ा और उसमें लिखा था मैं तुझे नाश कर दूंगा, मैं तुझे मारूंगा। वो पकड़ लिया, कह रही ये मेरे लिए परमेश्वर कह रहा है, प्रभु मुझे मार रहा है। She had read somewhere that it was written in the Bible that I will kill you, I will destroy you, and she caught it and she said, God is saying this for me. बहुत कोशिश करी मैंने उसे समझाने, I tried a lot to help her. वो पूरी कन्विंस थी। She was fully convinced. शैतान क्या लेके आया यीशु मसीह के पास? What did the devil bring to Jesus? वचन। The word. अगर सुसमाचार नहीं पता तो वचन से ही डिसीव कर सकता है कोई आपको गलत शिक्षा से। If you do not know the gospel, someone can deceive you using the word. मैं एक व्यक्ति के पास गया जो प्रॉफिट कहते थे अपने आप को। I went to a man who used to call himself a prophet. आज आपको पता है चर्च की दिक्कत क्या है? You know the problem of the church today? We are running after to get a personal prophecy. हम भाग रहे हैं लोगों के पीछे कि कोई हमारे लिए भविष्यवाणी कर दे। And
इसको हम अहमियत नहीं देते. and we don't give importance to His word. ओके सो मैं उनके घर गया और मैं छोटा सा, मैंने पहले भी आपको बताया पर कट शॉर्ट करके बता रहा हूँ. I went to his house उन्होंने मेरे ऊपर प्रोफेसी करी. क्या प्रोफेसी कर रहे हैं आप? and he made a prophecy over me. Now hear what he says. He says, I am seeing मैं देख रहा हूँ you are in ICU. तुम ICU में हो, There are tubes all over your body. पूरे शरीर में ट्यूब्स लगी हुई हैं. This is what the Lord is showing. ये है जो प्रभु मुझे दिखा रहा है. Some prophesy, some prophesy. कुछ लोग भविष्यवाणी करते हैं और कुछ भविष्यवाणी के नाम पर झूठ बोलते हैं. अगर केवल क्योंकि किसी ने कह दिया यहोवा कहता है, इसका मतलब ये नहीं यहोवा कहता है. Just because somebody said, "Thus says the Lord," doesn't mean that is what the Lord said. Bible says, test every prophecy. बाइबल कहती है हर एक भविष्यवाणी को परखो. आज कितनी गलत भविष्यवाणियों ने नाश कर दिया कितने मसीहों को. Today many wrong prophecies have destroyed many believers. मगर पौलुस लिखता है कि कई लोग अंत में कान की खुजली मिटाने के लिए वो जाएंगे. कुछ अच्छा बोलो. But Paul says people will go तू for ऑस्ट्रेलिया जाएगा. ओ आमेन. You will go to Australia. फॉर्चून मिलेगा. आमेन. अरे क्या ये मसीहत? Is this what Christ is about? हाँ? अरे उसका वचन कह तो रहा है आप दुनिया के छोर तक जाके मेरा, अरे फेथफुल और छोटे में ऑस्ट्रेलिया क्या दुनिया के छोर तक लेके जाएगा वो आपको. His word is saying, go to the ends of the earth, be faithful in the little, He will take you to the ends of the earth, not just Australia. मैं आपको बता रहा हूँ बहुत 5 टाइम हो जाएगा. मैं आपको बोलूँ तू तुझे 100 करोड़ मिल रहे, तू तेरे ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तू ये जा रहा है, तू वहां जा रहा है. और फिर वो लोग किससे ऑफेंड होते हैं? परमेश्वर से. And then those people, they get offended with God. प्लीज समझो इस बात को. Please understand. प्रॉफिट्स की एक जगह है. There is a place for प्रभु ने prophets. उन्हें नए नियम में रखा है. God has kept them in the new covenant. बट प्रॉफिट्स आर नॉट देयर टू डायरेक्ट यू. लेकिन भविष्यद्वक्ता आपको मार्गदर्शन या दिशा निर्देश के लिए नहीं है. मैं शादी कर लूं इस लड़की से, वो कह रहा हाँ कर ले. Should I marry this girl? He says yes, marry. बाद में मुंह सूजा हुआ आ रहा है. And then he comes with a swollen face. तो चले गए प्रॉफिट जी. The prophet is gone. खा घुसे पूरी लाइफ. Now get punches all your life. क्यों? बाइबल कहती है सिंपल कब तक सिंपल रहेगा? Bible वचन में says, बढ़. how long will the simple stay simple? चाहे कितना भी बड़ा नाम हो उस प्रीचर का, अगर गलत प्रोफेसी करे नहीं रिसीव करना यीशु के नाम में. No matter how big a preacher's name is, if he prophesies wrongly, do not receive it. क्योंकि यीशु ने क्या दिया आपको? What has Jesus given you? अधिकार. He's given you authority. मैंने उनका दरवाजा खोला, मैं बाहर आया. I opened that house door, I came out. मैंने कहा यीशु के नाम में I said ये in जो Jesus' गलत name. शब्द मेरे ऊपर बोले गए हैं, मैं यीशु के नाम में नाश करता हूं, इनको खंडन करता हूं. मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि ये कभी मेरे ऊपर पूरा नहीं होगा. कोई भी हथियार, क्योंकि लिखा है कोई भी हथियार जो हमारे विरोध में रचा गया है वो सफल नहीं होगा. I came out and I said, in Jesus' name, I cancel all these words spoken against me. They will never come to pass because your word says, no weapon will prosper against us in Jesus' name. क्यों हो रहा है ये सब? Why is all this happening? क्योंकि शॉर्टकट चाहिए सब. Because everybody wants a shortcut. आप बताओ You tell us. प्रॉफिट जी, प्रभु क्या कह रहा है मेरे लिए? Prophet Ji, what is the Lord saying for अरे me? खुद अपने कमरे में घुटने टेको. Come on your knees in your वो room. तुम्हारा भी पिता है. He is also your father. पुराने नियम में ऐसा होता था This used to क्योंकि happen in the old आत्मिक रीति covenant. से सब मरे हुए थे. Because everybody else was तो spiritually केवल dead. प्रॉफिट आपको बता सकता था प्रभु क्या कह रहा है. अरे नए नियम में यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं. So only the prophet could tell what the Lord is saying. But Jesus said for the new covenant, He said, my sheep hear my voice. परमेश्वर के दास जिनका मैं बहुत आदर करता हूं, केनेथ ई हेगिन, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है
80% भविष्यवाणियां जो मेरे ऊपर हुई थी वो पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं थी। Man of God Kenneth Hagin, whom I really honor, he wrote in his book, 80% of prophecies given to me never came to pass because they were not from God. I honor prophets, मैं भविष्यवक्ताओं का आदर मगर करता हूं। सुनो, But here, उनका नए नियम में काम है केवल कंफर्मेशन देना जो प्रभु ने आपको पहले से कह दिया है। their role in the new covenant is to give you a confirmation of what God has already told you, already spoken to you. अगर कोई आपको कहता है ये दिल्ली छोड़ो कनाडा चला जाओ, पहले अपने कमरे में जाओ, घुटने टेको, परमेश्वर से पूछो, अगर कॉन्फर्मेशन मिलता है तब जाना। If someone comes to you and says, leave Delhi, go to Canada, first go to your room, come on your knees, ask God for a confirmation, only then you go if you get a confirmation. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many of you understand? परमेश्वर, नए नियम में बाइबल कहती है परमेश्वर के पुत्र वो हैं जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। In the new covenant, those who walk by the leading of the Spirit are called His sons. आपको पता है मैं कब सेवकाई में आ जाता? You know, आप पास्टर सामर्थ से पूछो मैं कब सेवकाई में आ जाता। जब भी भविष्यवक्ता हमारी कलीसिया में आते थे, मुझे खड़ा करके बोलते थे प्रभु ने तेरे को कॉलिंग दी है, तू आ सेवा कर। I could have come into ministries a long time ago. Every time there was a prophet in the church, they would say, God has called you for ministry, come out. और मैं अपने कमरे में जाता और I would go to my room and the Lord would say, no, अभी नहीं। not yet. मैंने प्रेशर नहीं लिया कि किसी ने भविष्यवाणी करी मेरे लिए। I didn't feel pressured that somebody's prophesied over me. कितनी आप कभी पूछना इनसे कि कितने भविष्यवक्ताओं ने प्रोफेसी करी। You can ask how many prophets have prophesied that. अगर प्रभु मुझे कहता नहीं। God is saying no. जब तक Until मैं 9 साल तक उसके बाद नौकरी करता रहा। कितने साल तक? 9 साल। I was doing a job for 9 years after all those prophecies. थैंक गॉड मैं समय से पहले नहीं कूदा, Thank God I didn't jump before my time. वरना होती एक लूना, आगे जूडा, अमाया, एलियाना और मोनू। Otherwise we would be traveling on a luna. क्योंकि वचन में खड़ा हूं, आज एक ब्लेस्ड लाइफ जी रहा हूं। Because I stood on God's word, I'm living a blessed life. क्योंकि ये जो लिखा है ये कभी बदला नहीं जा सकता। Because what is written can never be changed. हो सकता है एक प्रोफेसी जो दी गई आपके लिए वो प्रभु की तरफ से हो ही ना, और आप वेट कर रहे हो पूरी लाइफ। Maybe somebody gave you a prophecy which was not from God and you keep waiting all your life. हाँ, एक लड़की को बोल दिया तेरा पति होगा वो यहाँ से आएगा और किसी शादी मत करना, वो बेचारी बैठी हुई है, प्रभु ने इतने बंदे भेजे नहीं की जाती। Told a girl your husband will come from that place. So many guys came, she didn't marry them. हंस रहे हो आप लोग, बहुत लोग, मैं जानता हूँ। You're laughing, many of you I know. बिकॉज ये सब चल रहा है Because all this is happening. इन द चर्च। कलीसिया में हो रहा है। You have to come back to the word. हमें वचन पर वापस आना है। Come back to the word. वचन पर वापस आना है। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी मुझे पर्सनली कभी इंप्रेस नहीं किया। कोई बंदा कह रहा है तू ये है, तेरा नंबर ये है, तू यहाँ रहता है। अरे ये तो मैंने बचपन, मेरे गांव में भैया दुष्ट आत्माएं बोलती हैं लोगों के बारे में सब कुछ। मैं नहीं इंप्रेस होता इन चीज़ों से। I was never impressed by people telling names, phone numbers and addresses because I've seen that growing up demons used कई to do लोग तो that. इंस्टाग्राम और फेसबुक से कर रहे हैं। Many of the people are doing this through Instagram and Facebook. आपको मैं फैक्ट बता रहा हूँ। I'm telling you the fact. एक व्यक्ति छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूँ, गलिबल मत हो। I'm just saying don't be gullible. वचन में हमें खड़ा होना है। We have to stand in the word. प्रभु यीशु मसीह एक बार केनेथ हेगन अंकल के पास आए। One time the Lord Jesus came to Kenneth Hagin. मुझे इतना अच्छा लगता है उनका एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। I loved his attitude. This should be our attitude. सो वो उनसे, प्रभु खड़े हैं उनके सामने और एक दुष्ट आत्मा आ गई बीच में, Jesus is standing before him and a demon came in between. और वो कहने लगे या कड़ा ऐसा And आवाज started to निकाल। make noises. और प्रभु कह रहे हैं कुछ, And Jesus is saying something. और ये कह रहे हैं कि प्रभु कह रहा है
और ये दुष्ट आत्मा चिल्ला रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। प्रभु को नहीं पता कि ये दुष्ट आत्मा मेरे को सुनने नहीं दे रही। And he is thinking Jesus is saying something and this demon is making noises. I'm not able to hear him. Does the Lord not know that this वो demon वेट is कर रहे हैं कि distracting? प्रभु अब डांटेगा इस दुष्ट आत्मा को, अब डांटेगा, अब डांटेगा। He was waiting that the Lord will rebuke this demon now. The Lord will rebuke this demon now. और जब नहीं हुआ कई समय तक उन्हें लगा मैं मिस कर रहा हूँ जो प्रभु कह रहे हैं। When it didn't happen for long and he felt he's missing out on what उन्होंने God is अधिकार saying. लिया दुष्ट आत्मा के ऊपर, He took authority on बोला the demon यीशु के नाम में मैं तुझे अधिकार से बोलता हूँ, निकल यहाँ से। and said in Jesus' देखा name वो I गिर गया command you दुष्ट leave. आत्मा, That demon fell, और कांपने लगा। started to shiver. फिर उन्होंने कहा कि प्रभु आपको देख नहीं रहे थे, आप इतनी देर से दुष्ट आत्मा मुझे बीच में वो कर रहा था। And he said, Lord, you didn't see the demon was distracting me for so long. And Jesus said something which changed his entire mindset about authority. और यीशु ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उनका पूरा विचारधारा बदल गई अधिकार के बारे में। Jesus told him, यीशु ने उनसे कहा, if you didn't, अगर तुमने नहीं किया, I couldn't. मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर सकता। So he was like, okay, मुझे गलत सुनाई दिया। उन्होंने कहा, I've heard wrong. He said, Lord, you mean उन्होंने कहा, प्रभु आप ये कह रहे if हैं ना, I didn't, अगर मैंने नहीं किया you won't. तो आप नहीं करोगे। No, he said, उसने कहा नहीं। ऐसा नहीं कहा। I said, if you didn't, उसने I कहा, couldn't. अगर तुम नहीं करोगे तो मैं नहीं कर सकता। पता है क्यों? अब सुनो ध्यान से You know क्यों? why now? Hear carefully. क्योंकि यीशु क्या है? कलीसिया का Because Jesus is, क्या है? he is the head of the church. सर कुछ नहीं करता, शरीर करता है। The head does सर nothing. केवल आज्ञा देता है। The head does nothing. The body does everything. आप क्या हो? Who are you? You are the body. आज जो लोग आ रहे हैं बीमार हैं, चंगे हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो उसकी देह है वो चंगा कर रही है। अरे वो तो सर स्वर्ग में है। People who are coming to church, they're getting healed because his body is healing. The head is in the church. Are you getting what I'm saying? The head is in heaven. If you won't do anything about the authority, Jesus won't be able to do anything. अगर आप अपने अधिकार का कुछ नहीं करोगे तो यीशु भी कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारे लिए। क्योंकि अधिकार उसने आपको दे दिया है। Because he has given you authority. कितने लोग मेरे साथ हैं, समझ रहे हैं इस How बात? many of you are with me? मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ जाओ, इस बात में जड़ पकड़ लो कि मेरी रोटी ये है। I want you to take root in this truth. This is my bread. प्रभु प्रॉफिट्स भेजेगा आपकी लाइफ में सही समय पर, वो आप नहीं भागोगे उनके पीछे, प्रभु भेजेगा। विधवा के पास प्रभु ने एलाइजा को भेजा। God will send prophets in your life. You will not have to run after them. God will send it in His time. It's a word he will give you. अगर वो वचन है वो आपको देगा। But let me tell you, पर मैं आपको बता दूं, your tongue is the greatest prophet in your life. आपकी जीभ आपके जीवन का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। I've gone to so many meetings where people have said things about me. मैं बहुत सी सभा में गया हूं जहाँ लोगों ने बहुत सी बातें मेरे बारे में I कही। tested it. मैंने उसको परख के देखा। I said no. मैंने कहा नहीं, अगर वचन के अनुसार नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा उसको। if it is not according to the word, I will not swallow it. Amen. परमेश्वर ने क्या दिया है आपको? What has God given to you? क्या दिया है? अगर परमेश्वर ही सब कुछ करेगा आपके लिए तो फिर अधिकार क्यों दिया यीशु ने आपको? If God will do everything for you, then why has God given you आप authority? जानते हैं यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? यीशु मसीह ने उनसे कहा, there is no verse in the Bible where it is written that God will do something about the devil. Jesus told him, ऐसा कोई वचन नहीं है बाइबल में जहाँ लिखा कि परमेश्वर कुछ करेगा दुष्ट आत्मा के बारे में, शैतान के बारे में। He said his church will do it. उसने कहा उसकी कलीसिया करेगी। आपको अधिकार दिया गया है। He has given you authority. बोलो मुझे अधिकार दिया गया Say, है I have been given authority सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। to trample snakes and scorpions. Amen. सबसे बड़ी एक चीज है, मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। कई लोगों की थियोलॉजी थोड़ा थोड़ा सही होती है। पहले तो ये होती है